Most respected Honorable Principal, respected teachers, my spiritual colleagues from the Brahma Kumaris Vidyalaya, and last but not the least, my dear wonderful, young, colorful, creative, beautiful and handsome young friends. Good morning. थोड़ा प्यार से बोल सकते हैं, good morning. Namaskar. Jai Hind. And Om Shanti. First of all, it's a great pleasure to be here in this wonderful, beautiful campus. I'm so happy to see all of you. Thanks for your warm welcome also. Today, my dear friends, I'm not at all here to give you some advice, but as a good friend, I'll have a very wonderful heart-to-heart conversation with you. I'll speak to you in very simple English और थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलूँगा. आप सबको हिंदी समझ में आता है? अच्छा, कितनों को हिंदी समझ में आता है वो हाथ उठाएं? Great, great, so sweet. Okay. So today there's been a lot of topics that is given to me. One of the topic your madam was suggesting was all about positive programming of the mind. In your language, it is called as concentration. So I'll be focusing on this most important topic. I remember when I was a student like you in my school days, 7th standard, so we had a very wonderful teacher, brilliant teacher. वाणी इतनी मधुर कि कुछ पूछो मत. तो टीचर का एक बहुत अच्छा संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी. And my favorite one line song was concentrate on your studies. फिर पढ़ाती फिर गीत गाती थी, concentrate on your studies. तो हमको मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था. Sitting in the classroom, मैं बैठकर काउंट करता रहता था, आज मैडम ने कितनी बार गीत गाया. For I was the official scorekeeper of my class. So exam was inching close by, madam was in full spirit. तो 1 डज़न से ज़्यादा बार गीत गाया. So it broke off my elastic limit. तो मैंने खड़े कर पूछा, मैडम please tell me what is concentration. She looked at me, stared at me, smiled at me and said, Swami, don't ask questions. Concentrate on your studies. मैं उस दिन घर में गया, मैंने घर में पापा से पूछा, पापा what is concentration? पापा का चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है. लेकिन बड़े मानते किधर है? कंसंट्रेशन मतलब फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग स्वामी. तो मैंने पूछा, पापा फोकस क्या होता है? ध्यान लगाकर पढ़ाई करो. तो मैंने पूछा, ध्यान मतलब? कन्वर्जेंस. मैंने कन्वर्जेंस मीन्स एकाग्रता. तो मैंने कहा एकाग्रता मतलब क्या है? कंसंट्रेशन. मैंने कहा, पापा पहले मैंने वही प्रश्न पूछा था, जो आपने जवाब दिया ना उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स. So this is a topic that I am going to focus today, and I'm very happy. One of the criteria for my selection of my PhD students, मैं ये पूछता हूँ, what exactly is concentration? Because this is required in every domain of your life, whether it is academics, whether it is sports, while you are driving your vehicle, everywhere this is very, very important. So today I am going to communicate to you on this topic. So let's do a very simple exercise to quantify your power of concentration. So we'll do a very simple exercise. Will you be there with me? Yes or no? Yes, sir. That's so sweet. Can I have this? Okay, thank you. I appreciate that. No, I'm doing one exercise now, so I need my hands to be free. Okay, then after some time I'll use this. Okay. So ये exercise बहुत simple है. जब मैं कहूँगा 1, you should clap at your left. So आपका left उस तरफ है, right? देखो कितने अच्छे बच्चे, practice अभी से चालू कर दी. सुनो ना. जब मैं कहूँगा 2, you should clap at your right. Okay, your right is at this end. And when I say 3, clap at the top. For all of us, top is up there. Now the instruction, my dear young friends, is all of you have to look at Swaminathan sir, observe me, look at me and do exactly as what I'm doing. All the best, good luck to you. Okay, here we go. 1, 2, 3. नीचे रखो. मैं ये बताना चाहूँगा ना, ये एक्सरसाइज ना स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए नहीं है. क्योंकि टीचर्स आप लोग का तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा ही है ना. But this is something I learned from your teachers. कि being a teacher also हमको हर दिन सीखना चाहिए. This is such a good quality. So I request all the students to clap for your teachers. एक बार तालियां बजा लो.
अगली एक्सरसाइज सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स बस ऑब्जर्व करो आप लोग को, राइट? ओके, जिसको करने का मन कर रहा है मोस्ट वेलकम। आफ्टर ऑल आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो आप जरूर कर सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। बट चलो, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। हियर वी गो, 1 2 3 1। वाह, क्या कंसंट्रेशन है बॉयज वहाँ का। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़े प्यारे हैं आप लोग तो। क्या एकाग्रता है बच्चों की। ठीक है, चलो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। पहले मैंने इंग्लिश में बोला, आपको नहीं समझ में आया, मैं हिंदी में बोलता हूँ। आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको स्वामी सर को देखना है और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा का वैसे ही करना है, ओके? इस बार पास हो जाना। एंड आई विल ऑलवेज गो इन दिस ऑर्डर, I will not confuse you. I want you to pass. Okay? Here we go. सर, हमने सोचा वहां रुकने वाले। अरे जहां मेरा मूड चाहिए मैं रुकूंगा। हाथ नीचे रखिए। इंग्लिश में बोला नहीं समझ में आया, हिंदी में बोला नहीं समझ में आया। अब मैं आपको अपना मदर टंग मलयालम में बोलूंगा। क्या करें, बच्चों को हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। നിങ്ങളെല്ലാ കുട്ടികളും സ്വാമി സാറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം। क्या करें, को हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। अब इस बार तो आप लोग 100% पास होंगे एंड आई वांट यू टू पास दिस टाइम। नहीं तो 1 घंटे के बाद जब बाहर जाएंगे ना तो आपके दूसरे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स मिलेंगे, किधर थे वो, ऑडिटोरियम में सेशन चल रहा था। अच्छा, कैसा था सेशन? बहुत अच्छा सेशन था, 1 घंटा हम लोग तालियां ही बजा रहे थे। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट माय सिलेबस, ओके? ओके, हियर वी गो, 1 रखो रखो, ये लेफ्ट करिए। वाह, पास हो गए, जोर से तालियां बजाइए। So the learning from this exercise, dear teachers, is वैसे ये बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, मैडम बता रही थी, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे नहीं सुनते हैं ना, तो इनको मलयालम में समझाओ, इनको मलयालम बराबर समझ में आता है, ओके? ठीक है, now this is a simple exercise. Now let's focus on what's concentration. हमने physical exercise तो किया, now we'll do a very simple mental exercise. See, concentration is a technology. Its application could be at various domains. For example, na wheel is a technology. आप उसको पंखे में यूज करो, ऑटोमोबाइल में यूज करो, कंप्यूटर्स में यूज करो, मिक्सी में यूज करो, जहाँ यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। हम लोग आज जो फोकस करेंगे इस फॉर द मेमोरी पावर, क्योंकि दैट्स व्हाट ऑल ऑफ यू, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रिक्वायर, ओके? तो मैं काम करूंगा, what I am going to do is I am going to name around 15 objects और आप उसको याद करने की कोशिश करना। I want you to just try, कितना ट्राई करना कितना याद कर सकते हो। बहुत अच्छे बच्चे, कुछ बच्चों ने किताब खोल दिया, हेलो हेलो सब किताब बंद करो, अच्छे बच्चे ना। हाँ, we have to use our own mind and see, okay? One thing which I would love to tell you, my dear friends, is जितना आपका मन रिलैक्स्ड होता है ना, उतना is your high level of concentration. And my dear young friends, you will be able to get onto the solutions that you are working for it. And the classic example is Newton. हम सबको पता है न्यूटन was working with planetary problems. और न्यूटन जो था बगीचे में बैठा था, बहुत सुंदर प्रकृति को एंजॉय कर रहा था, और अचानक न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा। बच्चों, अगर न्यूटन की जगह पे और कोई होता तो क्या करता था? Wow, right answer and very sweet answer. And this philosophy you should remember it for your entire lifetime. Archimedes के राजा ने कहा, what is the percentage of the gold in the crown jewel and the crown throne? And we all know Archimedes was enjoying his bath and suddenly said eureka, and he was able to discover the law of buoyancy, the volume of water displaced, why does the ship sail and how does the nail sink. मतलब मन बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स का मन रिलैक्स्ड है या नहीं? डॉक्टर स्वामीनाथन को कैसे पता चलेगा? हाउ डू आई कम टू नो whether your mind is relaxed or not?
कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलिए। नहीं, आप रिलैक्स है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपका जो चेहरा है ना, मन का दर्पण है। तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? हाँ, एकदम मुस्कुराता हुआ, ठीक है? हाँ, लाइक दिस। मैंने एक बार बहुत वर्ष पहले अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, व्हेन आई वाज अ फुल टाइम फैकल्टी इन मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मैंने ये फोटो दिखाया। तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का तस्वीर है क्या? मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोला सर उनका हेड टॉप व्यू और आपका हेड टॉप व्यू सिमिलर है। अब बच्चों से मैंने एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र सीखा है। सुबह सुबह का टाइम है, आई विल से दिस गुरु मंत्र एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिपीट विथ मी, ओके? हियर वी गो। सभी बोलिए, इफ आई एम हैप्पी। थोड़ा खुशी से बोलिए ना, मुस्कुराते हुए बोलिए। अपने कुछ स्टूडेंट्स का चेहरा देख के डर लगता है, थोड़ा मुस्कुराते बोलो। इफ आई एम हैप्पी। चिल्लाओ नहीं ना, डराओ नहीं, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलो। एंड हैप्पीनेस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस जब हमारा मन बहुत शांत, मन बहुत शीतल, मन बहुत स्थिर होता है। There are more than 23 IITs of our country and I'm very happy to share with you, my dear friends. इसको ऑन कर। Okay, I'm very happy to tell you, IIT Kharagpur is the first IIT of Bharat. आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। IIT Kharagpur has become the first IIT that has started a course on happiness, right? ये happiness बहुत बहुत जरूरी। happiness का मतलब सिर्फ हंसना, खेलना, कूदना, दौड़ना नहीं है, वो तो है ही। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो जब अगर हम खुश रहते हैं, सबसे बड़ा फायदा, वी बिकम हेल्दी एंड thereby वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो मैं ये डायलॉग बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिएगा। इफ आई एम हैप्पी, आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी एंड दिस वर्ल्ड डैश 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 डैश। वाह, कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं मैडम। जैसा टीचर बोलेगा वैसा क्या, वैसे ही हम बोलेंगे। हेलो, दैट वाज फिल अप द ब्लैंक्स, डैश डैश डैश। मुझे लिखा था वो रीड करना चाहिए था ना। बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस स्टूडेंट्स, हैं, वंडरफुल चिल्ड्रन। अभी मैं फिर से बोलता हूँ, डैश डैश नहीं बोलना, जो लिखा है वो रीड करना। इफ आई एम हैप्पी, आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी and this world dash 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 dash। पास हो गए। कहते हैं एक स्टूडेंट ना दिन में 300 बार, एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? 300। और आप सभी स्टूडेंट सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? 400 बार। हाँ, गिव मी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर है, विल अपॉइंट यू एज अ कंसल्टेंट। और आपका भविष्य सुरक्षित है। एक बार मैंने अपने मुंबई के स्टूडेंट से पूछा, भाई कितनी बार मुस्कुराते हो? एक खड़े होकर कहता सर 3 टाइम्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर। और आपकी तरह अच्छा विद्यार्थी था। तो मैंने कहा, यू आर मेकिंग फन ऑफ माय क्वेश्चन? ही सेड नो। फिर मैंने कहा, व्हाई डिड यू गिव सच एन आंसर? तो उसने कहा, सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं ना कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। इनफ गुड रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग। एंड बिफोर आई कुड कॉम्प्लीमेंट हिम, ही गिव अनदर ब्यूटीफुल लॉजिक। सर रीजन जम्मू कश्मीर फ्लड सर, उस समय जम्मू कश्मीर में कुछ आंधी तूफान आया था। उस बच्चे ने मुझे कहा, सर यू माइट हैव सीन द ब्रेकिंग न्यूज़ इन वीडियोस दैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स ड्रॉपिंग दिस फूड पैकेट्स। सर नीचे जो लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे ना, कोई गरीब लोग नहीं थे सर, वो सारे देश और विदेश के पर्यटक थे जो जम्मू कश्मीर में साइट सीइंग के लिए आए थे। 1 हफ्ता भोजन नहीं मिला और उस दिन भोजन का महत्व समझ में आया। देन ही कंक्लूडेड हिज लॉजिक, सर शुड आई वेट फॉर एन इंपेंडिंग डिजास्टर, अ कैलामिटी, अ सुनामी? सर भूकंप का इंतजार करूं क्या, इस बात को महसूस करने के लिए कि मैं कितना ना सौभाग्यशाली हूं, राइट? सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, जब मैं 15 ऑब्जेक्ट्स दूंगा तो आपको क्या करना है? अरे याद नहीं करना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, याद अपने आप हो जाएगा। दैट्स अ यू नो बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। ओके, हियर वी गो। ऊपर क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? किसके लिए बोल रहे हैं? अब मैं 15 ऑब्जेक्ट्स बताता हूँ, आप इसको देखना और कितना आप याद कर सकते हो, राइट? इट कुड बी 0 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। 0 भी होता है ना, तो नथिंग टू वरी। आफ्टर ऑल 0 वाज डिस्कवर्ड इन भारत, यू नो, सो नथिंग टू वरी। 15 भी याद है तो इट्स ओके। लेट्स एनालाइज इट, ओके?
ओके ये अभी गो सभी बोलो फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, सॉर्ड, माइकल जैक्सन, सोफा, गोल्ड, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, पैरेट, कीज। अब 15 में से मैं उस विद्यार्थी से पूछूंगा जिसका चेहरा एकदम सीरियस है। अगर आपका चेहरा मुस्कुराता होगा तो छोड़ दूंगा। अब ये मेरे बहुत पुराने संस्कार है, चेंज ही नहीं होता, ठीक है। सो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ ना, मेरे मुंबई के बच्चे आजकल बड़े बुद्धिमान हो गए। सर हैप्पी सर, स्माइलिंग सर, चीयरफुल सर। वाह, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का चेहरा मुस्कुराता हुआ है, इसलिए मैं किसी से नहीं पूछूंगा। स्वामी सर थैंक यू वेरी मच, कितने अच्छे फैकल्टी निकले, सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देने का, बच्चों को टेक्नोलॉजी देने का। क्या देने का? Now I will do one thing. I will take up a small exercise unto myself. एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं लेता हूँ, और ये आपने बहुत बार एक्सरसाइज बहुतों को कराते हुए देखा होगा, कोई नई बात नहीं होगी आपके लिए। लेकिन मैं इस एक्सरसाइज के द्वारा को थोड़ा सा, जो मेरा जो मेन टॉपिक है ना, विच आई लव, थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस और थोड़ा सा क्वांटम इंटेलिजेंस को टच करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, एंड सर्टनली आई विल लव टू टेल यू व्हाट्स कॉन्सेंट्रेट। Thank you very much. Got this. Okay, so we'll do a simple exercise. You have A to Z. तो हम क्या करेंगे? We'll acknowledge the presence of all of you, dear respected teachers. तो सभी टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी अपने अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताइएगा। तो हम लोग यहाँ A से लेकर Z तक उसको टाइप करते रहेंगे। At the end of 26 मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर, you ask me any alphabet, I'll try. मैं कोशिश ज़रूर करूँगा to give the corresponding number. एंड देन टुडेज टॉपिक को मैं उस है ना डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स टाइम टू रिलैक्स माई सेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं अपने स्टूडेंट्स को पूछ रहा था, ये जो कंप्यूटर होता है ना बच्चों, ये कंप्यूटर के साइड में डिब्बा होता है। व्हाट इज द डिब्बा कॉल्ड एज? CPU। तो आप CPU के साइड व्यू से देखोगे तो यू कैन सी a couple of fans. Now just imagine one day you switch on the computer because of some technical reasons. The fans inside the CPU is not working. तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा सर वो गर्म होने लगेगा, आफ्टर सम टाइम इट विल हैंग ओवर। मैं कहा यस, व्हाट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इज an instrument like a computer requires cooling fans. How about this human computer? उस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए तो हमने पंखे प्रोवाइड किए, इस ह्यूमन कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करोगे बताइए? रिलैक्स इज द रिजल्ट, टेक्नोलॉजी क्या करोगे, उसको क्या कहते हैं भाई? कुछ तो बोलो है ना। इस हैं क्या बोला? स्लीप। वाओ, टुडे कमिंग टू दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल स्कूल आई हैव बीन एनलाइटेंड। आज मुझे समझ में आया कि स्वामी सर के क्लास में बच्चे सोते क्यों हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। वाओ, वंडरफुल। And to a very large extent in psychology what you said is very correct. लेकिन अगर आपका मन रिलैक्स है तो नींद इज अ रिजल्ट, यू विल हैव अ गुड स्लीप। किसने कहा? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। वाह, आपका भविष्य सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। वाह, मुंबई ज़रूर आना, मैं आपको मुंबई दर्शन भी करा दूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई भी लेकर जाऊंगा, वेरी क्लोज टू पवाई लेक, आई विल टेक यू टू IIT बॉम्बे ऑल्सो। मीनाक्षी आ जाइए, है ना, अपनी सखियों को और सखाओं को लेकर आना है। या आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। व्हाई एम आई कॉलिंग हर टू मुंबई? बिकॉज मैंने अपने मुंबई के स्टूडेंट से पूछा, बच्चों इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करेंगे? दिस वंडरफुल गर्ल सेज मेडिटेशन। मेरा मुंबई का एक बड़ा बुद्धिमान स्टूडेंट खड़े होकर कह रहा, सर इस ह्यूमन कंप्यूटर ठंडा करने के लिए मैं नवरत्ना तेल लगाऊंगा सर।
What an answer. मीनाक्षी, प्लीज कम टू मुंबई. आपको देखकर हमारे बच्चे सुधर जाएंगे. अभी भी वो नवरत्ना तेल लगाकर घूम रहे हैं. बट व्हाट यू सेड वाज वेरी करेक्ट. बाय द वे, कैसे, कहाँ से पता चला आपको ये मेडिटेशन? स्कूल से. वाह. तो काम करते 10 सेकेंड्स. आप स्वामी सर को देखना. वन इज द फिजिकल कॉन्शियसनेस, नंबर 2 इज द इमोशनल कॉन्शियसनेस. मैं चाहूंगा, मैं ओके कहूंगा, स्टार्ट कहूंगा और ओके करूंगा. 10 सेकेंड में चाहूंगा ऑल ऑफ यू यंग फ्रेंड्स, आप क्या करना, अपने इस फिजिकल सिस्टम को बहुत आराम से मैनेज करना, हिलना नहीं, ओनली फॉर 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स के बाद आपकी आज़ादी स्टार्ट हो जाती है. 10 सेकेंड्स बहुत प्यार से अपने शरीर को एकदम स्टेबलाइज करिए. अब आप देखना, स्वामी सर का फिजिकल कॉन्शियसनेस इज वेरी स्टेबल. मैं मन में कुछ तो कर रहा हूँ. आई एम डूइंग समथिंग. What am I doing? I'll be very happy to share this secret with all of you, right? But let's do the first exercise. Okay? Will you be okay with this? Right. So आराम से relax होकर बैठिए. Let's start. Okay. Thank you very much. Okay. And I was seeing all of you. Majority of you were absolutely stable, cool, calm, peaceful. That's so wonderful. Acha. I need one student who can come here and type these numbers onto the laptop and help me. कोई एक जन आ जाओ. कोई एक student आ जाओ. कोई भी आ जाओ. Okay. Come. Okay. What's your name? Janvi. Okay. ठीक है. I think you require a chair, Janvi. हाँ है ना chair. आराम से बैठो. Sir. Moonlight strolling से भी मन ठंडा होता है. किससे? Moonlight strolling. क्या बोल रहे हैं? Moonlight strolling. आप थोड़ा समझाएंगे तो मैं आई सर्टनली एक्सपेरिमेंट ऑन टू इट. मूनलाइट को रात को देखते रहना. ये है. सॉरी इट्स आउट ऑफ सिलेबस. आप जो बोल रहे हो, क्या करना पड़ेगा? रात को जब मिडनाइट या रात को जब ठंडा हो जाता है. हाँ पता है. ठंडा हो जाता है तब वहाँ पर घूमने से अच्छा लगता है. हाँ वेरी गुड. ठंडे पानी से भी नहाने से अच्छा ही लगता है. कल मैं करसोंग में गया था, मुझे ठंडे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी. वहाँ इतनी. आपका मन दिव्य बन जाएगा. वाह, गलती मैं करता हूँ. आपका मन दिव्य बन जाता है. व्हाट अ सिंपल मैकेनिज्म. हाथ उठाना, कोई से भी अल्फाबेट पूछना है. गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? सर ये क्या हो रहा है सर? जैसे ही मैंने गलती की, आप माफ करेंगे, आपका मन दिव्य बन जाएगा. सारे विश्व के यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्री, सिलीगुड़ी में आपके इस सुंदर से स्कूल में उतरेंगे और आपको बहुत प्यार से उठाकर लेकर जाएंगे. These days we are not looking out for intelligent people. हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है. We are looking out for those people who are holistically intelligent. अगली बार मैं आऊंगा ना तो मैं अपने साथ वो मशीन लेकर आऊंगा. उस मशीन के द्वारा विद इन 15 मिनट्स मुझे पता चल जाता है व्यक्ति कितना होलिस्टिकली इंटेलिजेंट है. राइट? वो मैं अगली बार जरूर बताऊंगा. तो अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? हाथ उठाइए और कोई से भी अल्फाबेट पूछिए. आई विल ट्राई. मैं कोशिश जरूर करूंगा. पूछो कोई भी पूछिए. हाँ ओके. G is 6'5". पूछते जाओ. हाँ ओके. S is 5'2", राइट? ओके. I is 6'9". कौन सा? N is 6'0". हाँ जी. ओके. R is 2'5". O is 9'3", है ना? P is सचमुच आपको P चाहिए था. P is it 30. K is 31. तालियां बजाओ. अच्छा काम करिए, आप नंबर पूछिए, मैं अल्फाबेट बताने की मैं कोशिश करता हूँ. अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है? फायदा क्या होगा? ये यहाँ पर कहाँ जाता है?
UK? I have to check out with the GPS. Okay, very good. आप नंबर पूछे ना अल्फाबेट राइट कौन सा 33 is last number Z I 69 is I 70 is L 01 is sure 01 चाहिए था 01 हाँ it's T हाँ जी हाँ ये काम करिए 93 is O अच्छा काम करिए आप कोई सा भी नंबर पूछिए उसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूँ गलती करूँगा तो क्या करना है क्या फायदा होगा इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित है आप टीचर्स का नाम बाला करेंगे सारे विषय में कि आज पे एनी नंबर 69 के पहले इट इज 86 और 69 के बाद इट इज 00 अच्छा एक काम करिएगा करेक्ट ना अपना अगर भूल के देख रहा हूँ तो मुझे अपने को डाउट हो अच्छा एक काम करिएगा फर्स्ट कॉलम में अल्फाबेट पूछिए आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स फर्स्ट कॉलम में अल्फाबेट पूछिए ओके एच के आगे इट इज 86 और उसके आगे इट इज क्यू और उसके आगे इट इज राइट ना एच के आगे इट इज 86 उसके आगे इट इज आर उसके आगे इट इज 25 तालियां बजा सकते हैं अच्छा काम करिएगा लास्ट कॉलम में नंबर पूछिए आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड्स लास्ट कॉलम में नंबर पूछिए 99 के पहले इट इज यू उसके पहले इट इज 31K उसके पहले इट इज 28A तालियां बजा सकते हैं अच्छा बताइए बच्चों मैं A से Z बोलूं या रिवर्स Z से A बोलूं बच्चों मैं A से Z बोलूं या Z से A बोलूं मैडम सेम संस्कार मेरे मुंबई के बच्चों की तरह वो भी मुझे रिवर्स करते रहते हैं वाह कितना अच्छा लगता है अब आपने रिवर्स करने के लिए बोला मैं भी रिवर्स करता हूँ Z तो चलो 33 है जो Y जो था ना आपने 68 बोला था तो मैं 68 नहीं बोलूंगा मैं 86 बोलूंगा आई ऑल्सो रिवर्स इट और अगला 2 मिनट्स के लिए सारे स्टूडेंट्स फील करना कि आप प्रोफेसर हो एंड स्वामी इज योर स्टूडेंट गिविंग वाइवा कैसा लग रहा है तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए एकदम मुस्कुराता मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स का PhD वाइवा लेता हूँ ना तो सारी यूनिवर्सिटी में पता है इफ स्वामी सर इज गोइंग टू टेक द PhD इंटरव्यू जितना चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा उतना इजी क्वेश्चन जैसे अपना चेहरा सीरियस बनाया मेरा जो क्वेश्चंस का भी सीरियसनेस जो पड़ेगा नाउ इट्स अप टू यू आजादी का अमृत महोत्सव कैसा क्वेश्चन चाहिए आप डिसाइड करो सो दैट्स माय वे ऑफ डीलिंग विद पीपल ओके तो मैं Z से A की तरफ जाता हूँ आप लोग थोड़ा सा मदद करना मुझे ना अगर राइट होगा तो मुस्कुराते हुए यस कहना तो विल गो फ्रॉम Z टू A इट इज 3 इसलिए ना मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं आगे पीछे याद करने में बहुत इजी हो जाता है 8 6 then it is 4 6 then it is 1 8 then it is okay 1 5 okay ठीक है जुड़वे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं it's 9 9 then is 1 0 then is 2 5 then it is 5 2 then is 7 2 then is 0 3 then is 3 9 then is 0 6 then is 1 2 then is 0 7 then it is 1 3 then it is हाँ जुड़वे बच्चे कितना अच्छा लगता है 0 0 then is 9 6 then is 6 8 then is 5 6 then is 5 4 then it is हाँ जुड़वे बच्चे 5 5 then is 5 0 then is 2 6 2 6 okay A is 2 8 the reverse is 8 2 B is B is it B is it is it B is it 8 0 जो 10 सेकेंड का पॉज दिया ना मैं सारे स्टूडेंट का चेहरा देख रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे घूर के देख रहे थे सर पहले गलती करो सर फिर हम आपको माफ करेंगे फिर मैं अपने मन को दिव्य बनाऊंगी फिर पासपोर्ट और वीजा का अप्लाई करूंगी फिर आप मुझे मदद कर देते थे ना एंड व्हाट वुड हैव बीन द राइट अप्रोच यू कुड हैव रेज्ड अप योर हैंड सर कैन आई हेल्प यू और मैं जितना हो सके एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था यस आई नीड हेल्प अगर आप में से कोई भी खड़ा होकर मुझे मदद कर देता था so the number is 08 the reverse is 80 I would have taken my lamba chauda letterhead I would have written a letter to all the universities I travel to all the industries I travel
और मैं लिखा दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट ऑफ द गोयनका स्कूल हियर इन सिलीगुड़, वेरी गुड स्कूल। इसको कितने मार्क्स मिले मैंने इंक्वायर नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट का दिल बहुत अच्छा है। प्लीज सेलेक्ट दिस कैंडिडेट टू एक्सट्रीम यूनिवर्सिटी, ओके, विद 2 एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप, हाईली रिकमेंडेड, प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथन, और लेटर दे देता था। सर ये पहले से बोलना चाहिए था ना, मैंने बोला था। To err is human, to forgive is divine, and to help somebody is superb. That's the essence of education. By the way, आप में से कितनों को ये टेक्निक सीखने की इच्छा है, वो जरा हाथ उठाओ। Wow. Okay, I'll tell you. Right? It's very simple. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इसको जरा okay, I'll bring the original. Sir, why did you come all the way from Mumbai to Siliguri? 2 reasons. One, your principal madam with lots of love invited us. That's the first reason. The second reason why I came to you, because somebody had asked me to come to you. And it's none other than late Dr. Kalam sir. मैं Dr. Kalam sir से काफ़ी कुछ बार मिला हूँ, और Dr. Kalam, the 5 years of Rashtrapati Bhavan, the gates of the Rashtrapati Bhavan was open maximum time for students like you. He was a great visionary. The last time when I met him was in 2014. He passed away in 2015. We were on an international conference, medical conference, जहाँ पे मैं अपना एक presentation दे रहा था, तो last time मैं उनको वहाँ मिला। और the comparer was introducing Dr. Kalam to all of us, और हम सबको बताया कि Dr. Kalam had more than 30 PhD degrees to his credit. अर्थात हमें Dr. Kalam को एड्रेस करना हो तो कैसे एड्रेस करेंगे? डॉक्टर 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 30 times बोलना पड़ेगा। But I found him so simple, so humble, so polite. That's one of the beautiful quality I found in Dr. Kalam. Dr. Kalam हमेशा कहते थे, we should teach our kids how to dream. Right? बच्चों को डराओ नहीं, लेकिन उनको सपने सजाना सिखाओ. And he always used to say, dream, dream and dream. And he used to say, dreams are not something that we see in sleep, but dreams are something which shouldn't allow us to sleep. Why did I bring? Thanks for this arrangement. I appreciate that. मैं डॉक्टर कलाम को यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि we at the Brahma Kumaris have done a wonderful research with DRDO. Correct? तो आज मैं उसका थोड़ा सा presentation बताना चाहूँगा. I think we are interacting with the teachers tomorrow. तो ये presentation मैं थोड़ा सा वहाँ पे teachers के सामने रखना चाहूँगा. Again, students will also be very excited to, you know, for 2 minutes to listen to this. That's Chopra. His Excellency, President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, we welcome you on the occasion of inaugural function of World Congress on Clinical and Preventive Cardiology at Abu Road, Shantiwan. Abu Road, Shantiwan is the headquarters of Brahma Kumaris, जहाँ से ये presentation कर रहे हैं. In the year 2006, as the Honorable President of India. We are very grateful to you, sir, being with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the world. We have already finished one day of our conference, which commenced this morning at 4 a.m. This conference is unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program. We started with the meditation program, okay? अब इसका आगे जो study था, जो research था, वो बहुत beautiful था. But basically, what we did together with DRDO was to find out the stress level of the most stressed out professions of our country. That is the police forces, the military and the paramilitary forces. And that's the reason we had a chance to go to these people and find out the level of stress that they have. Today evening I've got a program with CISF. They're that paramilitary force which takes care of our airport safety and security, okay? लेकिन वो तो हम आगे discuss करेंगे, but we'll get on to this concentration and memory part of it, right? तो my dear students, एक होता है good memory, अच्छा स्मरण शक्ति, which is required for academic exams. Number 2 is a powerful mind. मन शक्तिशाली होना चाहिए, which is required for the exams of life. तो मैं 2 मिनट powerful mind को touch कर I'll get on to memory, right? Okay, a simple question, my dear friends. Okay, बच्चों बताइए क्या है? फोन. ये मोबाइल का जो सारा जो मेमोरी है ना कार्ड में स्टोर किया गया है.
कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एसडी कार्ड, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। अगर मैंने मोबाइल से वो कार्ड निकाल दिया ना, दिस विल बिकम अ बॉक्स। एक काम करता हूँ, मोबाइल से वो कार्ड निकाल कर आई फिक्स इट अप इनटू योर मोबाइल। तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। इफ एनी स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई गिव्स मी अ रिंग, यू विल बी एबल टू रिसीव द रिंगटोन। तो एक मोबाइल का सारा मेमोरी स्टोर होता है कार्ड पर। आप बताइए, जो 26 नंबर्स आपने बताया था ना, मैंने कहाँ स्टोर किया है? A is 28, B is 08, C is 62, D is 05, है ना, E is 55, F is 45, G is 65, H is 86। कहाँ स्टोर किया? माइंड करिए, कोई जगह होती नहीं है। अरे मैं मेमोरी कहाँ सेव किया? हाँ, ब्रेन। इतने IITs में गए, इतने IIMs में गए, इतने एम्स में गए, स्टैंडर्ड आंसर मुझे मिलता है ब्रेन। बट द बेस्ट जवाब आई गॉट व्हेन आई वेंट टू अ गांव का स्कूल इन झारखंड। सारे लोग धूप में बैठे थे। मैंने पूछा, बच्चे कहाँ स्टोर करते हैं? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, स्वामी सर, भेजे में सेव करते हो सर। मैं कहा, डोंट यूज दिस वर्ड ब्रेन और भेजा, मेरा भेजा ना फ्राई हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, एक कंप्यूटर का सारा मेमोरी कहाँ स्टोर होता है? आई गिव यू 2 ऑप्शंस। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। करेक्ट। अगर आप में से कोई ये जवाब देता है कि CPU में स्टोर किया, इसका मतलब आपने कंप्यूटर को सही तरह समझा नहीं है। उसी तरह ब्रेन with hypothalamus gland, pituitary gland, dendrons, dendrites, neurons, cells, it's a part of the CPU. मैं पूछ रहा हूँ, which is the hard disk? सारा मेमोरी कहाँ स्टोर करते? The brain works like a CPU, but hard disk is different from the CPU. कहाँ सेव करते हैं? मैं बताता हूँ। जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है ना, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, मेडिटेशन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ एक्टिवेटिंग द सिम कार्ड। सिम मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। कोरोना वायरस आने के पहले जब हम एक दूसरे से मिलते थे ना, तो बड़े प्यार से पूछते थे, हाउ आर यू। आजकल जब से वायरस आ गया ना, तो वी पुट ऑन अ मास्क, सो वी डोंट आस्क द क्वेश्चन हाउ आर यू। क्या पूछते हैं? हु आर यू। सोक्रेटिस, ग्रेट फिलोसोफर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वर्षों पहले कह के गए हैं, टू नो thyself इज एजुकेशन। अपने आप को जानना ही शिक्षा है। ऐसे काफी बार हम टीचर्स बच्चों को ना मोटिवेट करते रहते हैं, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन सेल्फ को जानना बहुत जरूरत है। आप बताइए माय डियर यंग फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास। दैट्स द आंसर, राइट? 25 years before when I came to the Brahma Kumaris Vidyalaya, I was shown this slide. और उस दिन मुझे समझ में आया कि इतना पढ़ते, यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ाते हैं, पर रियल पावर स्टेशन को एक्टिवेट करना बहुत जरूरत है। गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह शरीर ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट। Some people call it as a soul, some people call it as an atma, ruh, but in the language of physics it's energy. And the language of quantum mechanics is called as quanta, point of light. When this energy enters the body, it is called as human being. Human अथा शरीर, being अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। 26 नंबर को याद करने से कोई मन शक्तिशाली नहीं बनेगा, लेकिन क्या याद करने से मन शक्तिशाली बनेगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो फुल फॉर्म है SELF। सभी बच्चे मेरे साथ बोल सकते हैं, सभी बोलिए, सोर्स of energy in light form। कभी टाइम मिलेगा, मुंबई में मीनाक्षी आएगी ना, तो I'll take you to बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर also। और मुंबई से थोड़ा दूर बोईसर में ना, दैट इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। दोनों जगह मैं जाता रहता हूँ। तो वहां मैं एटॉमिक साइंटिस्ट से पूछता हूँ, हैव यू एवर सीन एन एटम? द आंसर इज नो, नोबडी कैन सी एन एटम, राइट? लेकिन वो एटम को जितना आप सूक्ष्म करोगे ना, उतना वो शक्तिशाली बनेगा। The entire memory is stored in this point of light। बड़ों को समझने में थोड़ा तकलीफ जरूर होगा, लेकिन बच्चे समझ जाएंगे। Thanks to pen drives, छोटू 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 छोटू, एक छोटे से चिप में gigabytes of memories can be stored। The entire memory is stored in this point of light। स्वामी सर का सिम कार्ड यहाँ से निकला, ये बन जाएगा डब्बा, brain is still there। और अगर आप मुझे फोन करोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, this number is out of coverage area, गया सिम। फोन करते रहिए, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा। ये नंबर अस्तित्व में नहीं है, स्वामी सर कसम, and the entire memories get shifted। That's my PhD research। 26 नंबर याद करना तो आपके लिए 5 मिनट का काम है, और इसको समझना है ना, तो while I was doing my PhD, I came across a research from NIMHANS Bangalore। जुड़वा बच्चे
मामा को समझ में नहीं आता इसमें सीता कौन है, गीता कौन है. But given the same event, both girls will behave absolutely different. और ये समझने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है. सिलीगुड़ी में कोई अच्छा मारुति शोरूम होगा ना तो वहां पे जाइएगा. सेम मारुति ऑल्टो दो, बट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर हु इज रनिंग द व्हीकल. इसे हर दिन सुबह उठकर क्या याद रखना जिससे मन शक्तिशाली बनेगा. तो सभी हर दिन सुबह उठिएगा, अपना चेहरा दर्पण में देखना और इंग्लिश में डायलॉग बोलना. सभी बोलिए आई. थोड़ा जोर से बोलो. अरे डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो. आई. और थोड़ा प्यार भरिए. आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. इन रियलिटी वी आर ऑल स्टार्स. आजकल ना बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है. फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपरस्टार. उस दिन प्रोग्राम कर रहा था, एक खड़े होकर कहता सर रॉक स्टार ऑल्सो सर. कहते को जो स्टार बनना है बन. इसे व्हाट इज मेडिटेशन? इट्स योर एलकेजी सिलेबस. आप मेरे साथ तो गीत गा सकते हो. ट्विंकल ट्विंकल हाँ, हाउ आई वंडर. यू कौन है? यू कौन है? नहीं, आप तो तारे जमीन पर, आप तो यहाँ पर गोयका स्कूल में बैठे हो. हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. यू कौन है? अरे यार, तारे जमीन पर यहाँ बैठे हो. कौन? आज तो यहाँ बैठे हो ना तारे जमीन पर. हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. यू कौन है? कौन? कौन? हाँ, कौन? वाह, तेरा भविष्य सुरक्षित है. सही जवाब दिया. इट्स द ऑलमाइटी गॉड. और ये संदेश देने के लिए डॉक्टर कलाम ने मुझे बोला मेमोरी सीखना है तो यूट्यूब में दो, हजारों वीडियोस पढ़े. पर डॉक्टर कलाम ने यह बताया, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. भगवान, मैं तो तारे जमीन पर हूँ, आप कैसे हो? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को देखकर हम कहते हैं यू लुक लाइक योर मदर, यू लुक लाइक योर फादर. उसी तरह इफ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, माय फादर इज आल्सो द सुप्रीम लाइट. यस, या एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स. हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करता है. शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखना, 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु. गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा सत्य नाम ओमकार. सत्य एक निराकार परमात्मा है. जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट. हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है. नूर मीन्स, माँ कहती नहीं, ये बेटी मेरे आंखों का नूर है. 8th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स. एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और इसको समझने के लिए एक बहुत प्यारा सा हम लोगों ने गीत बनाया है. मैंने कहा ये वाला जो है ना, आप हमेशा ये गीत सुनना. वेयर आर यू? आई से क्या बोल रही है बच्ची? यस. आइंस्टीन कहते हैं, आइंस्टीन was very very intelligent. आइंस्टीन का IQ कहते हैं it was 155 प्लस. मेरे IIT बॉम्बे का जो बच्चों का IQ is 105. इसका मतलब है आइंस्टीन आपसे और हमसे थोड़ा बुद्धिमान तो हैं. तो आइंस्टीन कहते थे where physics sense metaphysics starts. आइंस्टीन कहते थे no problem can be solved from the same consciousness that you created it. Consciousness is all external consciousness. You know, metaphysical को समझना जरूरत है. And this girl says, I, the twinkle twinkle little star, I am the driver, and this body is my car. ये consciousness shift होना चाहिए. So this is what is very very important.
सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आपने वो 36 नंबर याद कैसे किए? वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा, मैंने आपको पहले कितना ऑब्जेक्ट्स बताया था? 15। थोड़ा जरा याद करो, 15 में से कितना याद है? जरा ट्राई करो, जस्ट ट्राई इट आउट। एक दूसरे को मत बताओ, आप जो जैसे बहुत अच्छे हो। ओके 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 ओके, जस्ट फाइंड आउट, क्वांटिफाई करो। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। Now I'll tell you, जैसे एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना बच्चों, उसी तरह सिम, SIM, तो S means a cell. You need to understand what is I and M. So now I'll tell you what exactly is concentration. The subtle faculty, the first one is M. M means the mind, मन. मन का काम है संकल्प करना, to create a thought. I is intellect, हिंदी में इसको बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि का अर्थ है जो थॉट आया ना उसको इमीडिएटली डिकोड करके इमेज बनाना। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, है ना? सभी सीधे बैठे बच्चों? हाँ, अभी सभी बोलो व्हेन, तो जोर से बोलो, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। हिंदी में बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। अब इतनी दूर मैं केरला से मुंबई, मुंबई से सिलीगुड़ी आया हूँ, तो खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा मलयालम सिखा कर जाऊंगा। मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। बहुत बच्चे सोचे अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, ये तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, ये जन्म जन्मांतर की बात है। 7th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कोई भी जन्म, केरला में भी, विश्व में कहीं पर भी जन्म ले सकते हो। एंड सारा खेल वो जीपीएस ऑटो बोर्ड पर काम करता है। जितना खुशी से मलयालम बोलेंगे, कोई ना कोई जन्म में अच्छे परिवार में डाउनलोड होंगे। गुस्से से बोलेंगे, फिर ऐसे ही परिवार मिलेगा। सारा खेल इज ऑटो मोड। ऐसे थोड़ा मुस्कुराते बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिचिट्टिंडंगल। सबको अच्छा जन्म मिलेगा, सबको अच्छा जन्म। आपने सही बोला, गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं था, कितना खुशी से बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन मीन्स द ऑडियो, आपकी भाषा में बोल रहा हूं। बुद्धि इज द वीडियो। सो व्हाट इज मन बुद्धि को यूज करके योग करना। मेडिटेशन इन हिंदी इज कॉल्ड एज योग। वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। वो 15 ऑब्जेक्ट्स बोला था, थोड़ा सा मुश्किल था याद करने के लिए, राइट? द मोमेंट यू डिकोड इनटू अ कलरफुल पिक्चर, सबसे ऊपर है, सभी बोलिए, फोटो फ्रेम, उसके अंदर स्कूटर, नीचे बड़ा विंडो, विंडो से उठकर आ रहा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का फ्रेंड है स्नेक, स्नेक के मुख में सॉर्ड, भाग रहा माइकल जैक्सन, छुप के बैठा सोफा, सोफा इज मेड अप ऑफ गोल्ड, उसमें बैठा टाइगर, हाथ में चॉकलेट, सर पे पॉट, उस पे ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट्स के ऊपर बैठा पैरेट, पैरेट के चोंच पे कीज। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा। इस 15 में से अगर आपने देखा है तो यस कहेंगे, नहीं देखा तो नो कहेंगे। क्या भी कहो, चॉकलेट, कीज, फोटो फ्रेम, कार, कैमरा, स्कूटर, सोफा, गोल्ड, टाइगर, एलिफेंट, अमिताभ बच्चन, माय गुड फ्रेंड रजनीकांत, माइकल जैक्सन। अच्छा बताइए कितने ट्यूबलाइट्स थे? सबसे ऊपर नंबर 1 में क्या था? फोटो फ्रेम। उसमें किसका फोटो था? नीचे क्या था? विंडो से कौन उड़ कर आया? फ्रेंड कौन था? स्नेक के मुख में क्या था? रनिंग बिहाइंड। कहाँ छुप के बैठा? सोफा इज मेड अप ऑफ। उसमें कौन बैठा था? हाथ में क्या था? सर पे क्या था? उसके ऊपर क्या था? ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा था? और उसके चोंच में क्या था? जब मैं कहूँगा 1 तो आप फोटो फ्रेम कहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15. सभी अपना हाथ ऐसे रखो, शर्माओ नहीं। रखा? अपना हाथ को ऊपर उठाओ और अपने पीठ को थपथपाओ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी। जब मैं 15 ऑब्जेक्ट्स बता रहा था, आई सॉ सम बॉयज एंड गर्ल्स ट्राइंग टू बाय हार्ट। फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम, फोटो 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 फोटो। ऐसे याद नहीं होता है। और आपकी मम्मा भी यही डायलॉग होती है, जोर से पढ़, जोर से पढ़, इतनी जोर से पढ़ तेरी आवाज किचन तक सुनाई देनी चाहिए। अब हाँ, बच्चे लोग चीखते हैं मम्मा अति इंद्रिय आनंद में, कुछ तो बोल रहा है। ये काम नहीं करता। मन बुद्धि एक साथ, चिल्लाना नहीं है, साइलेंस में। आप पूछेंगे स्वामी सर आपने 26 नंबर्स कैसे याद किए? आपके लिए मैंने एक इमेज बनाकर दिखाया। मैं क्या कर रहा था, आपको देखते 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 आई वाज क्रिएटिंग एन इमेज इन माय मेंटल कैनवस। बहुत सिंपल है दोस्तों। 6 कॉलम्स, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर। छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है और टीचर उसको पढ़ाती है। ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, क्लासिक मेमोरी। वाह, कितने वर्ष पहले पढ़ा, आज भी याद है। अब छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है, उसको थोड़ी ना पता एबीसीडी क्या। जैसे ही मैडम कहती ए ध्वनि ऑडियो बच्चे के मन में आता है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है, एप्पल। फिर मैडम क्या करती है, एक एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल ए लिख कर देती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए ए ए। वाह, व्हाट अ लविंग मम्मा, राइट। जितनी बार हम लिखेंगे उतनी बार वो बुद्धि में इंप्रेशन बैठेगा। फॉर एवरी नंबर आई क्रिएटेड एन इमेज। 15th अगस्त बच्चे क्या इमेज बनता है? इंडिपेंडेंस डे। 25th दिसंबर क्रिसमस फादर, गिफ्ट फॉर यू डियर स्वीट चिल्ड्रन। 5th सितंबर हमें टीचर्स याद आते हैं। 14th नवंबर, 14th फरवरी, माय गॉड, अपडेटेड सिलेबस। हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस था स्कूल में, राइट ना टीचर्स? बच्चों को ज्यादा पढ़ना होता है, राइट। तो मैंने क्या, हर नंबर की एक इमेज बनाया और एक इमेज का दूसरे इमेज के साथ मैंने कनेक्ट किया। आइंस्टीन कहते थे, आप मेरे साथ बोल सकते हो, सर बोलो, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन डैश। अरे फिर डैश बोलो। ये बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है। प्लीज फिल अप द ब्लैंक्स। रियलिटी, वाओ, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी। फिर बोलो, एनीथिंग, ये भी आइंस्टीन का डायलॉग होता है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड नंबर 2 इन डैश। Imagination is more powerful than knowledge. Anything in this world is created twice, first in the mind, number 2 in reality. That's very, very important. So what is very important in education is you should be able to use the right side of the brain, creative brain. And I'm so happy this school gives you such a beautiful environment for that. आप कितने भाग्यशाली हो, आपको अंदाज होना चाहिए। तो मैंने बस इमेज बनाता गया, बहुत आराम से जब पूरा हो गया ना, तो 26 × 2 52 अल्फाबेट्स का मेरे पास पूरा चित्र था। आप कहीं से भी बोलो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा 15 ऑब्जेक्ट्स में लास्ट ऑब्जेक्ट कौन सा था बच्चों? उसके पहले कौन सा था? उसके पहले? उसके पहले? अच्छा बताओ, माइकल जैक्सन के पहले कौन था, माइकल जैक्सन के बाद कौन था? कितना इजी है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। अब लास्ट में, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आई टेक इट डायरेक्टली टू द इंजीनियरिंग दिस वन। वैसे एक बात मैं बताता हूँ, 14th फरवरी वैलेंटाइंस डे बोला ना, सच्ची बात बताऊं, मुझे भी वो दिन बहुत अच्छा लगता है। Let me be very honest with you. 2 reasons. First reason, उस दिन मेरे क्लास में 100% अटेंडेंस। कोई बीमार भी होगा उसे लड़खड़ाते हुए आएंगे। उस दिन मुझे समझ में आता है प्यार में क्या शक्ति है। और दूसरा, उस दिन मेरे स्टूडेंट एकदम सुंदर श्रृंगार करके आते हैं, तो क्लासरूम लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। एंड आई स्टार्ट टीचिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है ना, आपके फिजिक्स के बड़े भाई साहब हैं। तो जैसे ही पढ़ाता हूँ, सारे बच्चों का मुंह लटका रहता है, सर वी आर नॉट इन अ मूड टू स्टडी। मैं कहता क्या हुआ बच्चों? सर वैलेंटाइंस डे सर, वेरी गुड डे सर, लवफुल डे सर, अब मैकेनिक्स सर मन नहीं कर रहा। मैं कहा बच्चों बट आई हैव टू कवर द सिलेबस ना। तो एक काम करते हैं, मैं आपको पूरा मैकेनिक्स थोड़ा सिखा दूंगा, फिर आई गिव यू अ वैलेंटाइन गिफ्ट। इज दैट ओके? सर वैलेंटाइन के लिए कुछ भी करेगा सर, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। तो आई टीच देम। उस दिन में मेरा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला व्हिच आई लाइक।
T is a time period of simple harmonic motion. आप लोग 10th 11th 12th में ही पढ़ते होंगे, तो एक जो साइकिल का जो है ना, it's called as time period. So T is the time period, 2 is 2, pi is 22/7, I is the mass moment of inertia, m is the mass, g is the acceleration due to gravity, b is the point of application, d Helmholtz equation, rotatory motion. समझ में आया सारे बच्चे? सर मैंने इसको याद करना है तो उसको ऑडियो वीडियो बनाना पड़ेगा. तो मैं जिस तरह पढ़ाता हूँ मैं बताता हूँ. ये जो पेंडुलम होता है ना बच्चों, जब एक एंड में जाता है ना तो आवाज करता है, टन. कैसा आवाज करता है? और थोड़ा जोर से, डराओ नहीं ना, तो प्यार मोहब्बत के साथ. तो जब ये पेंडुलम इधर जाएगा ना तो आप लोग एक साथ करना, सभी करो. जब वो वहां पे जाएगा ना सिर्फ वहीं पर टन करना. यू शुड डू टन ओनली व्हेन इट रीचेस देयर. അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രം ടൺ എന്ന് ചെയ്താൽ മതി. फिर भी नहीं समझ में तो इंटरनेशनल लैंग्वेज चाइनीज बोलते चिंग चोंग चिंग टन. क्या करें, सब लैंग्वेज समझाना पड़ेगा. वैसे अब तो यूनाइटेड नेशंस का काम चल रहा है, तो मैं विश यू टू एक्नॉलेज. ओके, तो बच्चों रेडी? ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू. हियर वी गो. वेरी गुड. यहाँ किसने करने को कहा टन 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 करते रहते? इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, चाइनीज में भी बोला ना, वहाँ सिर्फ समझ में नहीं आता बच्चों को. हाँ प्लीज ना, वहीं सिर्फ टन करना है. अच्छे बच्चे ना, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे. ओके, हियर वी गो. हेलो, जिसको जैसे बोलना करना तो यू कंट्रोल योरसेल्फ. ओके, फिर से करते हैं. You have no control about how others are behaving, but you should focus on to yourself. Okay? Here we go. प्लीज बच्चों बिल्कुल आवाज नहीं करना. अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, गोयंका के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं. यू पीपल आर सो वंडरफुल. टोटल कंट्रोल ऑफ योर माइंड इंटेलेक्ट. बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे. आपका देश, हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा देश भी सुरक्षित है. बच्चे पास हो रहे, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे. सो मच ऑफ कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर. डॉक्टर कलाम सर इज वेरी हैप्पी विथ यू. पास हो रहे. आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ ऑल ऑफ यू. बिल्कुल आवाज नहीं करना है. भले आपके पास आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का सही महत्व यूज करें. यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन. पास हो रहे, बिल्कुल आवाज नहीं करना. पास हो रहे. माई गॉड, व्हाट अ वंडरफुल कंट्रोल. एवरी चाइल्ड इज पासिंग दैट एग्जाम. पास हो गए. He is very happy. का जो बीच का टाइम है ना, इसको टाइम पीरियड कहते हैं. मैं कहा बच्चों इसका भी थोड़ा एक स्क्रिप्ट बना दो ना. थोड़ा सोचने. एक ने कहा सर आई फॉर मिस्टर इंडिया फिल्म सर. मैंने कहा मैं मिस्टर इंडिया फिल्म का क्या करूंगा? बोला सर मिस्टर इंडिया फिल्म में विलन का कैरेक्टर का नाम मालूम क्या था? करेक्ट आंसर, वेरी गुड जनरल. MGB मोगैम्बो खुश हुआ. मैंने कहा मैं भी बहुत खुश हुआ. मैंने कहा कि 2 पाई को भी जोड़कर एक अच्छा स्क्रिप्ट बना. बहुत सोच रहे. एक ने कहा सर हिंदी में चित्र बनाया सर स्क्रिप्ट. मैंने कहा बोलिए. बोला सर आई स्टार्ट विद 2. मैंने कहा बोल ना. बोला सर 2 प्रेमी. मैंने कहा व्हाट? बोला सर 2 प्रेमी, वैलेंटाइन इफेक्ट. मैंने आगे बढ़ प्रेमी लोग का क्या बता. बोला सर 2 प्रेमी इंतजार कर मर गए बेचारे सर. मैंने कहा होपलेस ट्रैजिक स्टोरी बनाता है. मैंने कहा आउटराइटली रिजेक्टेड. मैंने कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ट्रैजिक स्टोरी, 2 प्रेमी इंतजार कर मर गए बेचारे. मैंने कहा व्हाट इज द स्क्रिप्ट? आउटराइटली रिजेक्टेड. जैसे ही द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द क्लासरूम, वन स्टूडेंट वेरी हाइपर एक्टिव. स्वामी सर कल रात में पूरा सोया नहीं, वो प्रेमी लोग को जीवित करने की कोशिश कर रहा था. मैंने कहा जीवित हो गए? बोला यस. मैंने कहा कैसे क्या बता? बोला सर 2 प्रेमी. मैंने कहा जीवित कैसे क्या वो बता. बोला सर 2 प्रेमी इन मुंबई गोराई बीच एंड एंजॉयिंग द प्रकृति सर. सच अ वंडरफुल स्क्रिप्ट. तो बच्चों अगर मैं कहूंगा 1 तो आप कहना T 1. जब मैं कहूंगा 2 तो आप कहना 2 पाई 2. ഞാൻ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 പൈ എന്ന് പറയണം. 2 मलयालम पूरा अच्छा जन्म मिलेगा. वेरी गुड. जब मैं कहूँगा 3 तो आप कहना I 3. जब मैं कहूँगा 4 तो आप कहना MGB 4. 1 2 3 4. जब मैं MGB कहूँगा 4 कहना. MGB 4 I 2 पाई 2 T 1. बहुत अच्छे बच्चे सभी देखकर बोल रहे हैं. नाउ इट्स माय टर्न. और स्टूडेंट्स पास होना. और जब स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास होते तो क्रेडिट पता है किसको मिलता है? वाह, ये टीचर्स हो सौभाग्यशाली. कितने अच्छे बच्चे मिले. हियर वी गो. 1 2 3
B. I. T. Okay. 2 pi. अब मैं रिशफल करूंगा. अपन 100 out of 100 लेकर जाएंगे यहाँ से. Okay, here we go. 2. 4. 1. I. 4. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. आज रात को 2:30 बजे मैं कॉल करूंगा. This is Professor Swaminathan calling. What is 1? क्या जवाब दोगे? T is 2 pi I pi mgb. Good night, sir. रात को 2:30 बजे हमारा एग्जाम नहीं लो. See, it's so easy, so beautiful. Learning should be enjoyable. Learning should be fun. Learning should be entertainment. And love is such a wonderful emotion. और कहते हैं संसार में there is 2 love which is very very pure. One is God's love and number 2. Look at the Chotu. So happy in his mother's love. ये भी तो 2 प्रेमी हो सकते हैं ना? Yes. तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर वैलेंटाइन गिफ्ट देता हूँ. जाके घर में जाकर अपने पेरेंट्स को जरूर देना. And that is a full form of family. सभी बोले father and mother dash dash dash. आप में से कितनों को ये सेशन अच्छा लगा वो जरा हाथ उठाएं. वाव, बहुत अच्छा. हाथ नीचे रखिए. और इस सेशन के लिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी फीस फ्रॉम यू. है कुछ लोगों को लगता होगा स्वामी का ब्रेड एंड बटर के लिए पहुंच गए. नो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. और ये पहला स्कूल नहीं मैं कर रहा हूँ. आई बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 20 years, ट्रैवलिंग क्रिस क्रॉसिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. तो मैंने अब गुरु दक्षिणा को जरूर देना. तो आप में से कौन कौन इस अच्छे सेशन के लिए गुरु दक्षिणा स्वामी सर को देंगे? वो जरा हाथ उठाओ. अरे भाई फीस नहीं लूंगा ना. फिर भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे. हाथ नीचे रखो. मुंबई के बच्चों का सेम संस्कार, वो भी हाथ नहीं उठा रहे. मैंने कहा हाथ क्यों नहीं उठाते? एक खड़े होकर कहता सर आपका कोई भरोसा नहीं. फीस तो नहीं ले सकते, लेकिन अंगूठा ले लिया तो. मैंने कहा तेरा अंगूठा लेकर मैं क्या करूंगा? तो सिंपल गुरु दक्षिणा that I want from you is from today till 31st December, don't get irritated with your parents. कुछ भी बोले ना, irritate मत. And that is how you make your year a happy new year, and you make your parents happy new year. Swami sir never gets angry. मैं कभी किसी पर गुस्सा करता ही नहीं. पहला दिन मैं आकर अपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, you will never see Swami getting angry with you. I'll teach you equilibrium and you will be able to see equilibrium in me. Anger, A-N-G-E-R. जब भी एंगर आए ना तो एंगर के सामने एक अल्फाबेट डी लगा दो. तो एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? कितने बुद्धिमान बच्चे. मुंबई के बच्चों से पूछा, बच्चों एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक खड़े पर कहा सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है. डैंगर नहीं है, डेंजर है, डेंजर. इसलिए आई एम वेरी इंटेलिजेंट, यू नो, नॉट जस्ट एकेडमिकली इंटेलिजेंट बट आई एम वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट. आप गलती कर रहे हो उसके लिए मैं गुस्सा कर, मैं अपना बीपी नहीं बढ़ाऊंगा. मैं अपने दिल को हार्ट अटैक की तरफ नहीं लेकर जाऊंगा. आई विल बी वेरी कूल, वेरी काम, एंड आई विल सी दैट यू डू द वर्क व्हिच आई वांट यू टू डू. राइट? ये धीरे धीरे आप बच्चों को सीखना. आप अभी 7th 8th 10th स्टैंडर्ड पे ना जब बड़े हो जाएंगे, यू हैव टू मैनेज द होल कंट्री, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लास्ट 2 minutes आई विल डू अ सिंपल टेक्निक ऑफ मेडिटेशन. बट बिफोर दैट, क्योंकि डॉक्टर कलाम को दिखाए तो आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स वेयर आई गो टू टीच दिस टेक्निक. दिस इज इंडियन नेवी. जान है तो हाँ, मैं एक बार इनसे पूछा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है सर. मैंने राइट आंसर, राइट आंसर. अपने जहाज का पहले ध्यान रखो, फिर जहान अपने आप ध्यान रख सकते हो. दिस इज इंडियन नेवी. दिस इज इंडियन एयरफोर्स, बैंगलोर, यलंका. राइट? I was there interacting with all of them, some of the pilots, right? And since we are associated with the DRDO project, they get emotionally connected to this particular project, right? This is Indian Army. आज के बाद ना बच्चों स्ट्रेस कभी नहीं कहना लाइफ में. We should never use the word stress. अगर आपको स्ट्रेस वर्ड यूज करने का मन भी कर रहा है ना तो स्वामी सर के साथ आना. I'll take you to all the border areas. यहाँ पर खड़े होते ना तब स्ट्रेस क्या है समझ में आता है. इस तरफ इस भारत, उस तरफ हमारा पड़ोसी देश है. जो बीच का जो ब्रिज है ना, इट इज कॉल्ड एज अ नो मैन्स लैंड. व्हेन अ पर्सन इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस.
उस तरफ जो बंकर्स है ना, कभी भी फायरिंग हो सकता है. And nobody is going to question that country, why did you fire at us, right? And this is an area where I appreciate the initiative by your school in having this United Nations. What do you call that project as? Yes, where you have different representatives of different countries, where you know and understand the culture of different countries. Brahma Kumaris is there in 140 countries. We have a presence. We enjoy NGO status with United Nations, consultative status with UNICEF and UNESCO. रशिया में भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, यूक्रेन में भी है, चाइना में भी है, तो ताइवान में भी है. हमारे 140 देशों में हम लोग ये मेडिटेशन सिखाते हैं. इट्स ऑन एनर्जी कॉन्शियसनेस, नॉट ऑन मैटर कॉन्शियसनेस. मैटर रंग रूप स्वरूप, तेरा देश, मेरी जाति, तेरा धर्म. बट व्हेन यू आर फ्लक्चुएटिंग इन दैट एनर्जी कॉन्शियसनेस, एक दूसरी दुनिया आ जाती है. एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. Some people like Einstein and Dr. Kalam have understood that. You can also understand because you study physics. This is Indian Army, and this is Colonel Sati who took me to the bunkers at Bharat's end. He is General, उस समय Major General Bipin Rawat. We lost this soldier some months before. He was the first CDS, a thorough gentleman, a royal personality. Major General way, फिर General way. बड़े प्यार से हमको बुलाया. जब सेशन ले रहे थे पूरा 2 घंटा सामने बैठकर सुन रहे थे वो. He is such an experienced person, लेकिन इतनी नम्रता मैंने देखी उनमें. Correct. This is April 2012. These are some of the police forces. These are some of the paramilitary forces, and this is the world's highest battlefield of the world, Siachen. India, Pakistan, China के border पर. I am at 12,000 feet up. Siachen Battle School. और फिर these are some of the army officers. They took me to 18,000, and our soldiers are there at 28,000 feet up. I moved up till 18,000 feet up. मैं आपको पता है ये फोटोग्राफ्स क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आप लोग 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद विश्व में कहीं पर भी जाएंगे. मे बी सम ऑफ यू विल रीच द सिलिकॉन वैली अमेरिका. तो जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप कहेंगे स्वामी सर आप आए थे सर 2022 सर, यू टॉट अस मेमोरी एंड कंसंट्रेशन. तो आई कंग्रेचुलेट यू इन सिलिकॉन वैली. बट इफ आई सी एनी वन ऑफ यू इन यूनिफॉर्म, मैं आपको सल्यूट भी करूंगा और आपको बहुत प्यार से जादू की छप्पी भी लगाऊंगा. यस, to get on to the defense forces. Because this year is a very special year for us. It's Azadi Ka Amrit Mahotsav. An attitude of gratitude, but at the same time responsibility also to take this and see that our country is safe. And that is a responsibility for every one of us. So my dear friends, Siachen और यहाँ पर भी गया मैं उन सभी को सिखाता हूँ the technique of meditation. So I'll just take 2 or 3 minutes to take you to this journey of meditation. सभी सीधे बैठे. सभी स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स 1 मिनट खड़े हो जाएं. काफ़ी देर से बैठे हैं. थोड़ा हाथ ऊपर करें. गुड. हाँ, अब बैठ जाइए. थोड़ा चार्ज भी है ना. So what are we going to do in meditation? I am going to help you with a small guidance, my dear friends. For example, पहली बार आप जब 4-wheeler चलाते हो ना तो कोई ना कोई आपके साथ बैठकर सिखाता है. This is accelerator, this is brake, this is clutch, and this is how you change your gear. You join the Indian Air Force, if you fly MiG-21 Sukhoi or the latest Rafale, so you are been taught in a prototype model में सिखाते हैं आपको. फिर धीरे धीरे आप फ्लाइट में बैठते हो. फिर धीरे धीरे you are man over machine, the man over control over machine. छोटा सा मनुष्य कितना बड़ा मशीन को कंट्रोल करता है. द पावर दैट वी हैव. तो मैं आपको छोटा सा मेडिटेशन का, जैसे उसमें गाइडेंस होता है ना, ऐसे ही मन को कैसे लेकर जाना उसका गाइडेंस मैं आपको बता रहा हूँ. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑल बिकम एक्सपर्ट टू डू दिस टेक्निक ऑफ मेडिटेशन. तो मेडिटेशन में क्या करना है? सबसे पहले आई एम जस्ट शोइंग यू फोटोग्राफ्स एंड वी विल डू, हम लोग खुद करेंगे. तो सबसे पहले रिलैक्स होना, शरीर को एकदम हल्का छोड़ देना. फिर क्या करना है? फिर महसूस करना है कि हु एम आई. ओके, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ सो दैट यू डोंट गेट डाइवर्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड. सबसे पहले आराम से रिलैक्स होना है. रिलैक्स होने के बाद मैं कहूँगा अर्ली मॉर्निंग सनराइज, सुबह सुबह का सूर्योदय. तो ऑडियो आपके मन तक पहुँचेगा, आपकी बुद्धि विल क्रिएट अ वीडियो. अर्ली मॉर्निंग सनराइज विच कलर? अच्छा, ऑरेंज. और बताइए? येलो. और बताइए? बस काफ़ी कलर्स हो गए, राइट. जो रंग आपने बताया ना उससे स्वामी सर को ये समझ में आ गया कि बच्चे सुबह कितने बजे उठते हैं. समझ में आ गया.
अरे आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जब जागे तब सवेरा. But if you want to remain successful, all successful people in this world, they sleep early, they get up early. हम जब आपके क्लास में पढ़ते थे ना, जैसे आपकी जैसे, तो हमारी टीचर हमको बहुत प्यार से सिखाती थी. Early to bed, बोलो. Early to rise, makes a man, dash dash dash. वाह, अच्छा लगा. सिलेबस चेंज नहीं हुआ अभी तक. So nice. Now it's your choice. सारी दुनिया सो रही है तब आप उठो, सारी दुनिया जागे तब आप सो जाओ. This is something we call it as creative. So all people who practice meditation, they sleep early, they get up early. Okay. Today my wake up call is 3:30 a.m. मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ और पिछले कितने वर्षों से, right? और रात को मैं 9:30, 10, 10:30 बजे I'm off to sleep. इसलिए और 3:30 बजे उठा, अभी तक सोया नहीं. Still I'm so fresh. हाँ, दोपहर को थोड़ा सा आधे एक घंटे हम लोग अगर टाइम मिलता है तो सो जाते हैं, नहीं तो ड्राइव करते वक्त, मतलब when I'm in the car, somebody is driving, I take the permission, take a small power nap, and you're so fresh the entire day because you're getting up early in the morning. All people who are into research, who are into leadership, who are into creativity, art, they get up early in the morning. क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना बहुत ब्यूटीफुल होता है. I had a chance to go to ITR, Integrated Test Range Missiles, चांदीपुर, उड़ीसा. तो वहाँ मुझे वो डॉक्टर कलाम का वो जगह दिखाया, जब बीच बीच में मिसाइल ठक ठक करके गिरता था ना. अभी तो हम बहुत अनुभवी हो गए. तो डॉक्टर कलाम एक छोटे से पहाड़ी है, वहाँ बैठते थे. He used to relax his mind to find out the problem that is happening in the cryogenic engine, etc. तो ये सुबह जल्दी उठिएगा, ओके? कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, खुद होगा. और एक दिन आप सुबह उठ गए ना, मम्मी के पहले उठे ना, बाप रे, एक हफ्ते तक मम्मी को नींद नहीं आएगा. सारी दुनिया को व्हाट्सएप करेगी, मेरा बेटा राजा बच्चा है, मेरा बेटा सुबह जल्दी उठा. वाह, ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखो. और अगर हो सके ना, मम्मा को एक कप चाय बना के पिला दो, फिर तो 1 साल के लिए उसका हैप्पी न्यू ईयर चलेगा. कितना इजी है ना दुआएं कमाना. इट्स सो इजी. कभी कभी मैं भी अपने पापा को I prepare a cup of tea and give it to him. It's such a beautiful feeling, you know. अच्छा, सुबह का सूर्योदय देखना, रेड कलर, और मन और बुद्धि से देखना वो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे आपके पास आ रहा है. It is touching you, right? Just see through your mind and intellect, and just see जैसे वो सूर्य का प्रकाश आपको टच कर रहा है, आप फील करना you are very relaxed and you are very healthy because this body requires vitamin D, which you get it from the natural sunlight. मैं सियाचिन में इसलिए गया था. सियाचिन में आप सूर्य को देख ही नहीं सकते, क्या उनको विटामिन डी नहीं चाहिए क्या? तो वहाँ जाकर मैंने उनको बोला, और अगर थोड़ा सा सूर्य निकलता भी है ना, ये सियाचिन कमांडोज देख ही नहीं सकते. अगर देखा आंखें फ्यूज हो जाएंगे. इसलिए मुझे दिया वो है ना, सिक्योरिटी सर्विस विंग ने मुझे वहाँ भेजा कि वहाँ जाकर मेडिटेशन सिखा. राइट? तो आप भी कर सकते हो. आप वो सूर्य के प्रकाश को धीरे से अंदर आते, अपने में आते हुए देखना. जैसे क्वारंटाइन हो गए, विटामिन सी एंड विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू हेल्दी. क्या करेंगे? मन बुद्धि से देखो उसको. राइट? फिर देखना आई एम वेरी हेल्दी. अब फिर देखना हु एम आई, प्रकृति के बीच में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वेरी पीसफुल यू आर, बहुत शांत स्वरूप हो. नाउ टेक एन आउटवर्ड जर्नी. 1 सेकेंड में अपने घर में पहुंचना, धीरे से घर का दरवाजा खोलना, गो क्लोज टू योर मम्मा. राइट? और बहुत प्यार से मम्मा को कहना, मम्मा थैंक यू वेरी मच. गो क्लोज टू योर पापा. पापा थोड़ा चिल्लाते होंगे, जो भी हो, कभी डांटते भी होंगे, कोई बात नहीं. आज जाना बहुत प्यार से जादू की छप्पी लगाना और पापा से कहना, पापा आई लव यू. दैट इज योग, दैट्स कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन. धीरे से अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, हो सके तो सुप्रीम लाइट को देखना मन से, मन और बुद्धि से, and see the vibrations slowly coming to you. जहाँ तक हो सके आप करना. एटलीस्ट ये पूरा का पूरा जर्नी नहीं भी कर सकते हो, बाई चांस आपका बुद्धि इधर उधर चित्र बनाता है तो फिर से ट्रैक पे आओ. नॉट मोर देन 1.5 minutes आई एम गोइंग टू टेक. 1.5 मिनट अगर आप मेरे साथ यात्रा कर सकते हो, मीन्स यू हैव गॉट अ हाई लेवल ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, आराम से बैठिए. Thank you friends for your wonderful cooperation. Let's undertake a very wonderful journey of meditation.
relax yourself completely. This journey is through our mind and intellect. The function of the mind is to think, and the function of the intellect is to create an image. Sitting over here, through your mind and intellect, see the early morning sunrise. Subah subah ka suryoday dekhiye. Behind the mountains, red in color. Early morning sunrise is a symbol of hope and optimism. आशा और विश्वास का एक प्रतीक है. Keep on watching this early morning sunrise. Now just see the rays of the sun in red color slowly coming to me and touching me. सूर्य का प्रकाश धीरे से आपको स्पर्श कर रहा है. And just feel, I am healthy. मैं स्वस्थ हूँ. ये शरीर एक बहुत सुंदर जहाज है और मैं भ्रुकुटी के बीच में, at the center of the forehead, twinkle, twinkle, little star, point of light. मन बुद्धि से देखिए उस एनर्जी को. I am very peaceful. मैं शांत स्वरूप हूँ. This is my swadharma. Now friends, let's take an external journey, outward journey. एक सेकंड में आप अपने घर तक पहुंच जाइए. You're in front of your home sweet home. Slowly you're opening the door, entering your home sweet home. Your aura of peace is all across you. And with lots of love, go close to your mama. Touch her feet. Mama, thank you very much. This is yoga. Go close to your papa. Papa, I love you. पापा को बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाइए. This is yoga. Feeling good? Now take an upward journey, up above the world so high. Through your mind and intellect, let's see the supreme light, the Divya Prakash, the Almighty, the Almighty God, वो शांति के सूर्य है, शक्ति के स्रोत है. मन और बुद्धि से उनको देखना is the highest level of yoga. See all the positive vibrations slowly coming to you and making you empowered. Thanking the Almighty, slowly come down. अगर आंखें बंद है तो धीरे से आंखें खोलिए. Open your eyes. And I take a pledge not to get irritated with my parents, but be very peaceful. I will respect and regard my teachers. And slowly I take myself to a very beautiful, happy new year. ओम शांति. अपने दोनों हाथों को सामने रखिए. हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें. हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस. दोनों हाथ को जोड़िए.
Slowly, let's all of us stand up. As per the Government of India protocol, 1 minute in silence as a mark of respect to all the Swatantrata Senani, freedom fighters, जिन्होंने अपने जीवन को त्याग, तपस्या, बलिदान दिया. At the same time, as a mark of gratitude to the present, every citizen of Bharat who is working in its own efforts to make this country a beautiful country. So we stand in silence for 1 minute and then we'll wind up this program with the national anthem. Let's stand in silence. Thank you so much, sir, for enlightening us with your knowledge and wisdom. It's time to start something new. It's time to start the magic of new beginnings. To the children, I am sure the children will surely implement all that they have learned today, and the magic that they've learned will remain forever. And anyone wants to? What should I say? Thank you so much, sir. It was an extremely enlightening session. I'm sure all my dear little ones, children here, will be taking back a lot of life lessons today. And having said that, I would also like to invite children, if anybody of you would like to share your experience today. Anybody? Raise your hand and is there anyone who would like to share? How are you feeling? How are you feeling after this session? Feeling positive. Anybody else? Feeling really positive and fresh, relaxed and peaceful. Peaceful. Very happy. Doing the national anthem after so long feels really nice to me and very fresh and very nice and very happy from inside. If anybody wants to ask some questions also. Is there any question that you would like to ask? Children? Who wants to share? So thank you for this wonderful program you showed us, presented it to us. We had lots of fun, all of us enjoyed it. You have a good humor and we enjoyed every moment of it together. Thank you so much, sir, for organizing this program in our wonderful school. We respect you a lot, and the memories and the knowledge you shared with each one of us. It will be very helpful in the coming future, and it will help us to be a better person and create a better India in the future. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Sir, thank you. You have taught so much, sir. It's a life lesson. And I want to thank Didi Goenka School for inviting us for this pleasure event. So, you are great. Thank you. Can you give the mic to me? Thank you, sir, for this program. I got a question, like he said, that there is a ray of light between our forehead. Like, where that ray of light comes from? Like, originated?
It is eternal. Energy can neither be created. Can I get a question? So the answer to this question is energy is always there. Energy can neither be created nor destroyed. So we all have that energy. Right now this energy is there within us. Okay. Now what happens is when this energy leaves this body, it goes to another body. It goes to another body. It keeps on moving, and this energy takes the form of a human being and does lots of roles to play. Where did it come from? The answer to this question is in the twinkle twinkle little star. Up above the world so high. So there's a source of all energies. वहाँ से वो आती हैं, यहाँ अपनी दुनिया में अपना कर्म क्षेत्र पे काम करती हैं. We play different roles, and after playing many roles, we go back to our home sweet home. So this is the answer, and this answer is a part of a spiritual wisdom that India has. So we come from there. That's called as a sweet silent home. It is called as Param Dham. It is called as Nirvan Dham. It is called as Mukti Dham. It is called as Shanti Dham. In the world of quantum dynamics, it is called as the supreme quanta. Okay. This year, the physics Nobel Prize, 3 लोगों को Nobel Prize for Physics मिला. It is called as quantum entanglement, quantum computing, and quantum teleportation. 3 physics. 2022 की बात कर रहा हूँ. The quanta क्या है? It's all about energy. So we are basically all energy, right? So the whole purpose of this session was to have a shift of consciousness from matter consciousness to energy consciousness. तो जो आप लोग physics पढ़ते हो, वही आपको अपने life में समझना है. Okay? If you are still wanting to know more of these clarifications, कब आते हैं हम, कैसे काम करना चाहिए, etc., etc. The Brahma Kumaris have got centers in 140 countries, and all our programs of meditation is free of cost. अगर फिर भी नहीं होता तो कभी YouTube में आप सिस्टर B.K. शिवानी को सुनना. She herself is a gold medalist in electronics and telecommunication engineering, and she was recently awarded by the previous Rashtrapati कोविंद जी से उनको मिला as the Women of the Year award in India. तो आप उनको भी सुनेंगे ना तो she'll be able to correlate so many things in our from our day-to-day life. तो थोड़ा सा आप सुनेंगे, थोड़ा समझेंगे तो you'll be able to appreciate it. Okay? Thank you for your question. God bless you. Okay. Someone is there? Okay, ठीक है. Instrument. Mike. Hello. First and foremost, good afternoon, sir. Good afternoon. I'm Sangel Palza Sherpa and I'm in Goenkan. It was a wonderful session, like, we really loved it. And so my question to you is, what's the secret to your smile? I'll tell you, that's such a beautiful question. The secret of my smile is whenever I go to a program, so people take a lot of selfies with me. और वो कैमरा वाला बोलता रहता है, सर स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो. इतने साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, और स्माइल करते करते now that has become a part of my face. So that is I meet so many people across the length and breadth of the country, and they take photographs with me. So with that aura and all, I feel so good. And thanks to the camera person who asked me to smile. तो मैं बहुत समय तक स्माइल करता रहता हूँ, तो मेरे संस्कार हो गए. One thing. Number 2 is I never get angry with people. So anger is something which disturbs our happiness. So I feel very good meeting everybody. I never get angry. And maybe the third reason is this practice of meditation, which helps you to be very stable and peaceful. Maybe that is getting reflected. Okay, but the best smile comes to my face when I see young boys and girls like you, right? Okay, thank you so much. You have anything else? Picture. Most welcome. We'll certainly do that. Okay, chalo. Yes, on behalf of all our dear children,
and the children from Model High School would like to extend, sir, heartfelt thanks to you and Nilima ma'am for conducting this beautiful session of positive programming in the mind. Can we have a huge round of applause, children? I think it was the best, inspirational and motivational. Along with that, I would mention spiritual session also for all of us. We could discover ourselves, isn't it today? So I was, when sir was interacting with you, when he was saying that mere meethe bacche, so I would also start from today onwards, mere meethe bacche. We will have photograph with sir definitely, group wise, whichever way you want to come, class wise and the school wise, we can have group photograph with sir. So once again, sir, on behalf of everybody, we would like to thank you with a small sapling. Yes, thank you so much, sir. Thank you. So we will start with the last group who has asked for the photograph. If you can bring the children ahead. सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो